Hey everyone, in this video again I will tell you the errors that are there in the sentences and I will tell you the exact grammar behind what is the exact reason or what is the logic that should be applied in the sentence. The first one says, I should feel happy if you will come to tea tomorrow. Now by reading the sentence, it is not possible to rectify or to identify the error. ठीक है, सेंटेंस में सीधा सीधे शब्द में बोला जा रहा है आई शुड फील हैप्पी, मैं बहुत खुश होऊंगा या होंगी अगर आप कल चाय पे आएंगे. सो द एरर इन दिस सेंटेंस इज should and will. Remember one thing, if there are in a sentence if there are two clauses का मतलब एक इस वाक्य में दो वाक्य है ना कि मैं बहुत खुश होंगी अगर तुम कल आओगे या आओगी, है ना, तो दो सेंटेंसेस हैं, दो क्लॉजेस हैं. Whenever there are two clauses or more than two clauses in a sentence, the verb has to be in the same form. यहां अगर should है तो इधर क्या हो जाएगा would. अगर यहां will है तो यहां हो जाएगा shall. Okay, so the sentence should be I should feel happy if you would come to tea tomorrow. ठीक है, यहां सेंटेंस होगा I shall feel happy if you will come tomorrow, come to tea tomorrow. Okay, example number 2, which says I should like to forward myself as a candidate for this post. हमेशा ही सेंटेंसेस बोलते हैं, सुनने में भी आता है कि I should like to forward myself. Now the error over here is forward. ठीक है, अब forward का मतलब होता है to put forth. जब आप किसी चीज को when you are pushing some object or you are placing some object which has no life into it, in that instances, in that examples, you will write the word forward. I would like to forward myself as a candidate for this post नहीं आएगा. क्या आएगा? इसकी जगह आएगा I would like to offer myself. Yeah, I should like to offer myself as a candidate for this post. देखिए है तो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस, बहुत ही माइन्यूट डिटेल है, बहुत ही छोटा सा ग्रामर रूल है, लेकिन समझने वाली बात है कि फॉरवर्ड आप सिर्फ किसके साथ लगाएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ. ठीक है, आप खुद को फॉरवर्ड नहीं करेंगे, यू विल ऑफर इट. ठीक है, यू विल ऑफर योरसेल्फ फॉर द पोस्ट, जो भी पोस्ट है. नाउ कमिंग टू थर्ड, hundreds of people died by earthquake. earthquake मतलब भूकंप आया और हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई. So the error over here is died. Why died? Died की जगह होना चाहिए hundreds of people were killed by earthquake. मतलब समझिएगा, फर्क समझिएगा. डाई आप तब लगाएंगे, डाई या डाइट, जब कोई नेचुरल कॉज हो डेथ का. ठीक है, जैसे हार्ट अटैक हो गया है ना, कोई इलनेस हो गई, किसी भी तरह की इलनेस है और पर्सन की मृत्यु हो जाए, तब आप बोलेंगे डाइड. बट व्हेन देयर इज नेचुरल कैलेमिटी, है ना, जब कोई ऐसा डिजास्टर हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, वोल्केनो इरप्शन हो जाए, कोई फायर ब्रेक हो जाए, है ना, उस केस में आप लगाते हैं किल्ड. ठीक है, moving to next sentence, will you kindly open this knot. Time and again I've been making videos on open का concept. हर चीज हिंदी में होता है ना, ज्यादातर क्या होता है हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं, और ओपन इतना कॉमन हो गया है कि हर चीज जब खोलनी होती, कोई भी चीज खोलनी है, वी यूज दिस वर्ड ओपन. ठीक है, इसकी नेक्स्ट बार में एक शॉर्ट बनाऊंगी 180 सेकेंड्स का, जिसमें आप देखेंगे कि खोलने को हमेशा ओपन नहीं कहते हैं. ठीक है, so the error over here is open and you do not open the knot, you untie the knot. Okay,
will you kindly untie the knot, yeah, this knot. Next sentence, I have to give another examination next year. This is very important in terms of banking and SSC papers. Now you will say मुझे अगले साल एग्जामिनेशन देना है, एग्जाम में बैठना, इसमें क्या गलती है? बच्चे क्या करते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब को हैज या हैड कराते हैं, ठीक है? Whereas the error is over here. You do not give another exam next year. You take another exam next year. Yes, यही difference है. I have to take another examination next year. Give कौन इस्तेमाल करेगा? Examiner. मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, ठीक है? मैं एक टीचर हूँ, है ना? I'm the examiner over there. So I will say I have to give examination. क्योंकि हिंदी में बोलते हैं ना कि मुझे अगले साल पेपर देना है, मुझे अगले साल पेपर देना है, मुझे अगले साल ये एग्जाम देना है, इसकी चीज में तैयारी कर रहा हूँ, तो इसलिए गिव हमें लगता है कि सही है. No, as a student, as a person sitting in competitive exams, you take examination. And a person who has to examine, who is examining the entire class, जो पूरी क्लास को देख रहा है कि एग्जाम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है क्वेश्चन पेपर्स, that person will take the examination. Take the examination. Okay. Now coming to next sentence, where have you kept the pencil? अब ये बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है, लेकिन एरर होता है और ये क्वेश्चन बैंकिंग एसएससी के पेपर्स में पूछा जाता है. Where have you kept the pencil? यहाँ पे एरर kept है, क्योंकि kept नहीं होगा. Where have you put the pencil or where have you placed the pencil? Keep का इस्तेमाल हम करते हैं थोड़े लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, या जब हम बात करते हैं कोई ऐसी हैबिट की या कोई ऐसी चीज की जो कंटिन्यूटी में है ना, which is in continuous process. एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. अगर मैं बोलूं she keeps a body clean by regularly exercising, by regular exercising, वो अपने शरीर को फिट रखती है कैसे? प्रॉपर एक्सरसाइज करके. I keep my important documents in the cupboard. ठीक है, तो I keep होगा, I put नहीं होगा, है ना? जब कोई चीज ऐसी, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है या कोई भी चीज आप ऐसे इधर उधर रख दें, in that case you will say I have put that particular thing over there, I have put the marker on the shelf. But when you are keeping that particular thing at a proper place और आप चाह रहे हैं कि that thing, और आपको पता है कि वो चीज आपके लिए जरूरी है, डॉक्यूमेंट हो सकता है कुछ भी XYZ चीज है ना, और उस केस में आप कीप का इस्तेमाल करेंगे कि ये चीज हैबिट में बनी हुई है एंड यू आर कंटिन्यूइंग दैट प्रोसेस, यू आर कंटिन्यूइंग दैट टास्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जैसे एक्सरसाइज करना तो रखना तो नहीं होता है ना, कोई एक्सरसाइज आपने रखी तो नहीं है, बट यू आर कीपिंग योर बॉडी फिट बाय एक्सरसाइजिंग. ठीक है, एक आदत वो चलती आ रही है. Next sentence says, don't hold this dirty sheet in your hand, throw it. Now where's the error? The error is over here. ठीक है, गेम होती है ना जो बॉल थ्रो करते हैं, वहां सब गिरानी रहती, बॉटल्स होती हैं, उस केस में आप बोलेंगे थ्रो इट, कि कीप इट असाइड. बट व्हेन यू आर सेइंग कि इसे फेंक दो, इसे जाने दो, अलग कर दो खुद से, तब आप बोलेंगे throw it away. Throw away the garbage. Throw it away. Don't hold this dirty sheet in your hand. Throw it away. इसे फेंक दीजिए, इसकी हमें जरूरत नहीं है. ठीक है, तो ये away हमेशा लगाना है. Moving to next sentence, which says, will you kindly mend this pencil? अब इसमें एरर ये है, you don't mend your pencils. Do you mend your pencils? Mend मतलब कोई चीज बिगड़ गई है उसको सही से करना, बोलते ना, टाइम रहते ही mend कर लो. Mend your relationships with your seniors, with your partner. तो mend this pencil नहीं होगा,
सेंटेंस बनेगा will you kindly sharpen this pencil. भाई पेंसिल टूट गई है, उसकी नोक, उसकी निब है, नोक है, वो टूट गई है, तो आप बोलेंगे इसे शार्पन कर दीजिए। अगर हाँ यहाँ पेन होता, हाँ अगर पेन होता, पेन की रिफिल कहीं है, ढक्कन कहीं है, कैप उसका कहीं है, उस केस में आप बोलते विल यू काइंडली मेड द पेन या मेड दिस पेन। समझ में आ रहा है डिफरेंस? द होल क्लास वर प्लेइंग, द होल क्लास वर प्लेइंग। नो डाउट देयर आर n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक बच्चे से क्लास नहीं बनती है, ठीक है, काफी सारे बच्चे होते हैं, बट काफी सारे बच्चे कहाँ होते हैं? एक क्लास में होते हैं ना। दिस होल क्लास इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंगल एंटिटी, है ना, एक होल क्लास एक है, एक की बात हो रही है। अगर यहाँ होता द स्टूडेंट्स, तो ये वर्ड प्लेइंग सही था कि बच्चे खेल रहे हैं, है ना, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल एंटिटी व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी वन यूनिट, एक यूनिट है ये। सो द होल क्लास वाज प्लेइंग, पास्ट टेंस में बात हो रही है तो वाज लग गया, सिंगल है, सिंगल है तो वाज, प्लूरल है तो वर। मूविंग टू द लास्ट सेंटेंस, रीता एंड आई वाज वॉकिंग इन पार्क। अब यही पढ़ते आ रहे हैं, यही सीखते आ रहे हैं कि आई के साथ हमेशा was लगेगा, है ना। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जब हम आई के साथ वर लगाते हैं, जब बोला जाता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह ये होती तो मैं ये गलत काम नहीं करती। If I were at your place, I would have not done the same mistake or the silly mistake that you did. लेकिन यहाँ पे रीता एंड आई was लगा है, तो यहाँ पे एरर ये was है। अब यहाँ एरर क्यों है? क्योंकि दो लोग हैं भाई, रीता एंड आई। When the subject, सिंपल सा ग्रामर रूल कहता है, when the subject is singular, the verb will always be singular except in certain cases, जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं गलत काम नहीं करती, है ना। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। अब नो डाउट अगर आप सीधा आई को देखेंगे तो आई के साथ was ही लगेगा, बट इन अ सेंटेंस आई एम टॉकिंग अबाउट टू पीपल इन्वॉल्व्ड, रीता एंड आई। हम दोनों क्या कर रहे हैं? पार्क में पैदल चल रहे हैं, तो क्योंकि सब्जेक्ट दो है तो वर्ब आपका ऑटोमेटिकली प्लूरल हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है। Here your subject is plural, therefore whenever your subject is plural, your verb has to be plural no matter what. So these were 10 to 11 sentences which I thought I should bring it, I should teach my viewers. If you have any doubt, any query, please write it down in the comment section and let me know. I will try to rectify those errors. Thank you for watching and being with me.